میرے عزیز طالب علموں، میں آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور اگلے کلاس میں جو اس میں مشتق کی قسموں کو بتایا گیا تھا، اس میں جو باقی اقسام رہ گئے تھے ان کو میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ جیسے کل بتایا گیا تھا اس میں فاعل کی دو قسمیں ہیں، اس میں فاعل قیاسی اور اس میں فاعل سماعی۔ آج میں آپ کو اس میں مفعول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور مفعولی معنی ظاہر کرے، یعنی اس چیز یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہو، جیسے لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دیکھا ہوا وغیرہ۔ اس میں مفعول کی دو قسمیں ہیں، اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول سماعی۔ جیسے اس میں فاعل میں دو اقسام بتائے گئے، اسی طریقے سے اس میں مفعول میں بھی دو اقسام بتائے جا رہے ہیں، اس میں مفعول قیاسی اور اس میں مفعول سماعی۔ تو اس میں مفعول قیاسی کی تعریف ہے، وہ اس مفعول ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر ہو۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نا کو گرا کر اس کے آخر میں ہوا، یہ ہوئی بڑھا دیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا یا لکھی ہوئی۔ لکھنا سے لکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا، دیکھنا سے دیکھا ہوا، گننا سے گنا ہوا، بولنا سے بولا ہوا، لڑنا سے لڑا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوا سب کے آخر میں لگا ہوا ہوگا، اور لگا ہوا جو ہوگا وہ اس میں فاعل قیاسی ہوگا۔ اس کا ایک قاعدہ مقرر ہے، اسی کے مطابق دیکھیے گا، سب کا ایک قافیہ والا ہی ہوگا۔ جیسے اس میں فاعل قیاسی میں آپ نے دیکھا تھا، پڑھنے والا، لکھنے والا، دیکھنے والا، سب میں والا لگا ہوا، نے والا لگا ہوا تھا، ہے نا۔ اسی طریقے سے اس میں پڑھا ہوا، لکھا ہوا، دیکھا ہوا، بولا ہوا، آیا ہوا، گایا ہوا، یہ اس میں مفعول ہیں۔ اب اس میں مفعول سماعی، اس کی تعریف ہے، وہ اس میں مفعول ہے جس کے بنانے کا قاعدہ مقرر نہ ہو، بلکہ اہل زبان کو جیسے بولتے سنا بولنے لگے، جیسے ادھ منواں، ادھ کچرا، ہے نا، ادھ مرا، یہ ہو گیا اس میں مفعول سماعی۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم جو ہے وہ ہے اس میں حالیہ۔ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر کرے، جیسے دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، پڑھتا ہوا، لکھتا ہوا، ہنستا ہوا، روتا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ بنانے کا قاعدہ اس کا یہ ہے، علامت مصدر نا کو ہٹا کر کبھی تا اور کبھی تا ہوا بڑھا دیں گے، جیسے پڑھنا سے پڑھتا ہوا، رونا سے روتا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے یہ جو ہمارے بولنے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظوں کی حقیقت کو ہمیں جاننے کے لیے قواعد کی ضرورت ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ احمد آ رہا ہے روتا ہوا، تو احمد آ رہا ہے تو پتہ چل گیا کہ احمد فاعل ہے اور آ رہا فعل ہے، لیکن
आ रहा है रोता हुआ, तो रोता हुआ क्या है? तो यही रोता हुआ है इसमें हालिया, यानी आने वाला फ़ाइल होगा। फ़ाइल की हालत को बता रहा है, उसकी कैफियत को बता रहा है कि आ तो रहा है मगर रोता हुआ। लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है लड़खड़ाता हुआ, लड़का दौड़ता है लड़खड़ाता हुआ, तो लड़का इस फाइल हो गया और लड़का दौड़ता है फेल हो गया, और उसकी फेल की जो हालत हो गई लड़खड़ाता हुआ। उसी तरीके से अहमद सोता है, अहमद सोता है पढ़ता हुआ, मानी वो सोया हुआ है लेकिन हालत उसकी क्या है? पढ़ रहा है। सोने की भी हालत में वो पढ़ता हुआ है, पढ़ रहा है। तो ये हालत और कैफियत की जो मालूमात हासिल होती है, इसी को इसमें हालिया कहते हैं। तो आप समझ गए कि बनाने का कायदा क्या है। ना को गिराकर ता और कभी ता हुआ बढ़ा देंगे। अब उसके बाद में है इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़। तो ज़र्फ़ की तारीफ़ को ये कहेंगे वह इस्म है जिससे वक्त या जगह का पता चले। ज़र्फ़ वह इस्म है जिससे वक्त या जगह का पता चले, जैसे सुबह शाम मस्जिद स्कूल वगैरह। जिस लफ्ज़ से जगह का पता चले उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान माने ज़माना, ज़र्फ़ मकान, मकान माने जगह। तो ज़र्फ़ ज़मान, इसकी तारीफ़ बहुत आसान है। अब मानिए अगर समझ रहे हैं ज़मान माने ज़माना, तो आप आसानी से ज़हन नशी कर लीजिएगा। जिससे वक्त या ज़माना समझा जाए उसे ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, सुबह शाम रात और दिन वगैरह। ज़र्फ़ मकान, जिससे जगह समझा जाए, जिससे जगह समझा जाए उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे बैठक, ससुराल, हॉस्पिटल, दवाखाना, ये सब क्या है? इस ज़र्फ़ मकान है। उसके बाद है पांचवी किस्म जो है वो है इसमें आला। आला के मानी आप जानते होइएगा औज़ार। आला के मानी होते हैं औज़ार। उसी औज़ार के ज़रिए एक कारीगर अपना काम करता है। जैसे डॉक्टर का औज़ार क्या है? आला, जिससे वो लगा के जांचता है। उसके बाद राजमिस्त्री का आला क्या है? करनी। तो इसकी तारीफ़ को हम समझेंगे। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जो मस्दर से बने हों और काम का ज़रिया या आला हो। जैसे कफ़गीर, दस्ताना, उस्तरा। कफ़गीर, दस्ताना, उस्तरा, ये आप ज़हन नशी कर ले कि ये तीन लफ्ज़ जो है बोर्ड के इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। वैसे भी कोई भी जो जांच एग्ज़ाम होता है, जो कहने कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें यह तीन लफ्ज़ आला में, इसमें आला में खूब ज़हन नशी कीजिएगा। ये तीनों लफ्ज़ जो है फ़ारसी के हैं, ये तीनों अल्फाज फ़ारसी के हैं। लेकिन अब नीचे आप लोगों के आसानी के लिए मैंने लिख दिया है मस्दर से इसमें आला। कैसे आप बनाइएगा, या मस्दर से इसमें आला आले ज़बान ने क्या बनाया है उसको देखिए। झाड़ना से झाड़ू, ढांकना से ढक्कन, करना करनी, नाथना से नाथ, नुहरना से नुहरनी, कसना से कसौटी, सीना से सुई, डालना से डलिया, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ये
अब हमने पांचवी किस्म को पढ़ लिया। पहली जो किस्म है वो इसमें फ़ाइल है, दूसरी किस्म इसमें मफ़ऊल है, तीसरी किस्म इसमें हालिया है, चौथी किस्म इसमें ज़र्फ़ है और पांचवी किस्म इसमें आला है। अब हम इसको देखते हैं छठी किस्म जो हासिल मज़दर है, आइए उसको देखते हैं। हासिल मज़दर की पहले तारीफ़ समझिए। वह इसमें मुश्तक है जो मज़दर से बने और मज़दर की हालत और कैफियत को बताए। हासिल मज़दर का दूसरा नाम है इसमें मसदर। तो कहीं आप देखिएगा इसमें मसदर तो आप नहीं घबराइएगा कि मैंने तो पढ़ा है कि हासिल मसदर और यहाँ इसमें मसदर देख रहे हैं। हासिल मसदर और इसमें मसदर दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। हासिल मसदर दे के पूछे या इसमें मसदर दे के पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। तारीफ़ देखिएगा फिर, वह इसमें मुश्तक है जो मसदर से बने और मसदर की हालत और कैफियत को बताए। जैसे मुस्कुराना से मुस्कुराहट, मारना से मार, वगैरह वगैरह। मसदर से हासिल मसदर बनाना, मसदर हासिल मसदर। चालना से चाल और चलना से चलन। घबराना से घबराहट, रहना से रहन, मिलना से मिलन, पढ़ना से पढ़ाई, रोकना से रोक, हंसना से हंसी, लूटना से लूट, लिखना से लिखावट। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और समझने की है। हम जो इंटर के तालिब इल्म हैं या फिर 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं, वो बच्चे हमारे समझ लें कि ये उर्दू के हासिल मसदर हैं। जो अभी आप तहरीर किया हुआ देख रहे हैं ये उर्दू के हासिल मसदर है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में या कोई भी कंपटीशन हो तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम में उर्दू हासिल मसदर के साथ साथ आपको फ़ारसी हासिल मसदर भी पूछ दे सकता है। तो आपको उर्दू हासिल मसदर के साथ साथ फ़ारसी हासिल मसदर भी जानना होगा। और फ़ारसी हासिल मसदर जानने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी पतली सी किताब का नाम बता रहा हूँ जो फ़ारसी ज़बान में उसकी पढ़ाई होती है, जिसे कहते हैं आमदनामा। दूसरा नाम है उसका सिफ़तुल मसादिर। आमदनामा को अगर आप ले लेते हैं और उसमें जितने भी मसादिर हैं फ़ारसी के, उसके साथ साथ उसके हासिल मसदर या इसमें मसदर लिखे हुए हैं, उन सबको ज़हन नशी अगर कर लेंगे तो आपके कंपटीशन के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैं अभी तो लिखा नहीं हूँ लेकिन ज़बान से मैं कह दे रहा हूँ, जैसे फरमाना, फरमाना से हासिल मसदर होगा फरमाइश, है ना। उसी तरीके से आज़माना से आज़माइश, है ना। करदन मसदर है, करदन से कोशिश। उसी तरीके से है जुस्तन, जुस्तन से जुस्तजू, गुफ्तन से गुफ्तगू, आमदन से आमद, रफ्तन से रफ्त, वगैरह वगैरह। आगाज़ीदन से आगाज़, आरमीदन से आराम। इस तरीके से और भी है, बहुत सारे मसदर हैं। तो उसके लिए आपके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले तालिब इल्मों से मैं कहूँगा कि आप आमदनामा सिफ़तुल मसादिर को देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें मुआवज़ा को, जो 7वीं किस्म है और आखिरी किस्म है ना। इसमें मुश्तक की जो 7वीं किस्म इसमें मुआवज़ा है उसकी तारीफ़ पहले देखते हैं। वह इसमें मुश्तक है जो मसदर से बने और उजरत का मानी दे।
जैसे सिलाई धुलाई धुनाई वगैरह। आप, मुआवजा के मतलब होता है बदला, मुआवजा का मतलब होता है बदला। आपने एक हल जोतने वाले मज़दूर को बुलाया और आपने कहा कि मेरे ज़मीन को तुम हल लगा दो, ज़मीन को जोत दो, या ट्रैक्टर से हो या बैल से हो। तो उसने आपके खेत को जोत दिया, तो आपने काम किया, आपका काम किया, तो आप उसको तो कुछ देंगे उसके बदले में, काम के बदले में। तो आप काम के बदले में क्या दीजिएगा? वो काम किया है, जोता है, तो आप उसको जो पैसा दे रहे हैं, इस पैसा को कहेंगे जुताई। किसी रुई धुनने वाले को आपने बुलाया और कहा कि मेरे इस रुई को धुन दो, उसने धुन दिया, आपने उसको पैसा दिया, उस पैसे को क्या कहेंगे? धुनाई। किसी टेलर के पास में आपने कपड़ा दिया सीने के लिए, दर्जी ने आपके कपड़े को सिल दिया, तो आप उस कपड़े को सिलने के एवज़ में उसे जो पैसा दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सिलाई। उसी तरीके से लकड़ी कोई काटता है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो क्या है? कटाई। किसी आरा मशीन में लकड़ी को चीरने को आप उसको चीरने के बदले उसे पैसा दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? चिराई। तो इसी तरीके से आप यह जान लीजिए कि ये सारे अल्फाज जो आपने अभी सुना, इसको कहेंगे इसमें मुआवजा, यानी बदले में आप जो दे रहे हैं इसी को मुआवजा कहते हैं, और यही है इसमें मुआवजा। तो इन अल्फाज को अगर ज़हन नशी करते हैं आप, तो आप अल्फाज पर आपकी पकड़ होती है और आपका जो उर्दू अदब है वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। हमारे उर्दू ज़बान का लिटरेचर उम्दा हो जाता है, और जब अदबियत आ जाती है किसी भी लिटरेचर में, तो उसका असल जौहर, उसका असल हुस्न नज़र आने लगता है। फिर मैं यहीं छोड़ता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी मेरी।